हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने सैलरी टॉपिक की स्टडी किया था। सैलरी में हम लोगों ने अब तक जो देखा है दैट इज योर सेक्शन 14। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14A साथ साथ बोलेंगे। 14A, if there is any income which is exempt from tax, then related expenditures are not allowed at all. Section 15 was the charging section. Salary is to be charged to tax on the basis of due or receipt, whichever is earlier. And area of salary charged to tax under the head salary but subject to section 89(1). तीन डिडक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 16(1), 2 एंड 3। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अब बिल्कुल डिलीट हो चुका है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने समझा था कि दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली एंड only to a government employee. Non-government employees are not eligible to get this deduction. And what is the limit of deduction? Least of these three is deductible. Actual amount 5,000 and 1/5 of basic salary. ठीक. Section 16(3) was professional tax or employment tax. plain एक ही बात की गई थी कि whatever the amount is paid or payable by the employee in this account will be deductible at all. Clear? Section 17 was the definition part, and the first definition was given of a salary. Definition of a salary: basic salary, wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, leave encashment, area of salary, profit in lieu of salary, bonus, commission, perquisites, allowances, and section 80C(d). सेक्शन 17(2) में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलाभ। याद आया होगा। इन टोटालिटी दे वे 8 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन, if any rent free accommodation provided by employer to the employee, okay, if any concessional rent accommodation provided by employer to the employee, that is okay also. Third, the obligation of the employee is met by the employer, okay. Fourth, any value of benefit provided by employer to employee, either at free of cost or at concessional rate, only in the case of a specified employee. थोड़ी देर बाद specified employee की definition भी देख लेंगे. Next, the value of any fringe benefits as may be prescribed. Next, any sum paid to get an assurance of life of the employee. ठीक है. Seventh, any number of shares allotted by employer company to its employee under the scheme of ESOS or ESOP, either at free of cost or at concessional rate. Last, any sum contributed by employer in the account of employee on account of approved superannuation fund in excess of rupees 1,50,000. Oh, it is okay. Section 17(3) was the profit in lieu of salary, and there were 3 points in totality. Any amount of compensation due to a receipt by any employee from its employer due to termination or modification in terms of employment. First. Second, any sum due to a receipt by any person from any other person before joining of the employment or after the cessation of the employment. And the last and the third point was scheme and insurance policy. और इसके बाद मैंने आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में बताया था। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होता है जो इन तीन में से एक में कवर्ड हो। पहला, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। दूसरा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाला पर्सन। थर्ड, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसकी सैलरी मॉनिटरी
पर एनम 50,000 या उससे अधिक हो। लेकिन इसमें 50,000 का कैलकुलेशन करने में हमने बात बताया था, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था कि सारे के सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स लेंगे, टैक्सेबल अलाउंसेस कवर करेंगे, लेकिन डिडक्शन देने के बाद सेक्शन 16(2) एंड सेक्शन 16(3) की डिडक्शन देने के बाद। और जब हम यहां से गए थे ना, मैंने आपको एक सेक्शन दिया था, मैंने कहा था घर पे पढ़ लेंगे आप लोग, सेक्शन 10(10), और उसका नाम दिया था ग्रेच्युटी, और साथ साथ मैंने लिखा था आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। लास्ट सेशन में तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक बार केवल देख लेंगे, अदरवाइज इन दिस सेशन, इन today's session we will discuss each and every point relating to the gratuity. Once it will be over, I don't think so that this chapter would be the toughest one. It would be the easiest one chapter, क्योंकि बाकी आगे की सारी चीजें मैक्सिमम जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स होंगे इसी पर ही बेस्ड होंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं ग्रेच्युटी होती क्या है। जब एक एम्प्लॉय काम करने की एज में होता है 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, जब तक वो काम करने की एज में होता है देन इट इज ओके, ही इज वर्किंग फॉर हिज फैमिली। नाउ एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट who will pay him, who will give all the benefit, वो कहां से अपनी रोजी रोटी चलाएगा? अब रिटायरमेंट हो रहा है, उसके पास पैसों की कमी है, कहां से लेगा वो सामान, अपनी जरूरतें कहां से पूरी करेगा? उन जरूरतों को पूरी करने के लिए जब वो काम करने की एज में होता है, वर्किंग एज में होता है, तो उसके सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाला जाता है, ये एम्प्लॉयर निकालता है और उसके लिए ग्रेच्युटी फंड में डालता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो हो सकता है हर महीने 3,000 4,000 आपका निकले, ऐसा है क्या? नहीं, वो होता है प्रोविडेंट फंड। और जब मैंने आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाया था, बेसिक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1, तो उसमें मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई थी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट की एज के लिए या आफ्टर रिटायरमेंट अपने एम्प्लॉय को ऐसे ही रास्ते पे नहीं छोड़ता, बल्कि उसको एक हैंडसम अमाउंट देता है, ये ले अब अपना जीवन सुखी सुखी बिता, किससे? उस प्रोविडेंट फंड के नाम से, भविष्य निधि के नाम से उसको पैसा मिलता है, एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। बट व्हाट इज दिस ग्रेच्युटी? ये ग्रेच्युटी कैसे जनरेट होता है? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। ये भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट का एक हिस्सा है। एक एम्प्लॉय जितने सालों तक काम करता है अपने एम्प्लॉयर के यहां, उसको हर साल वर्किंग का कुछ न कुछ अमाउंट फोकट में उसको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट प्रोविडेंट फंड का तो मिलता ही मिलता है, जो कहां से जनरेट होता है? वो एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉयर के कुछ अमाउंट को जोड़ करके रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। इसके अलावा भी एक अमाउंट दिया जाता है विच इज टू बी नोन एज ग्रेच्युटी। प्रोविडेंट फंड की बात हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, और अब हम यहां पर उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ये चीज मैंने आपको उस समय सेक्शन 7 पढ़ाते समय बता दी थी जी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार सेक्शन 7 ढंग से देख लें। फिलहाल आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक और बेनिफिट दिया जा रहा है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, किस नाम से? ग्रेच्युटी के नाम से। तो क्या एम्प्लॉय के अकाउंट से या सैलरी से कुछ अमाउंट चार्ज करेगा एम्प्लॉयर? ना बाबा ना, ना बाबा ना। वो सीधे अमाउंट जब वो रिटायरमेंट हो लेगा तो एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा कितना साल काम किया? 30 साल। ओ 30 साल काम किया, हर साल काम करने के अगेंस्ट आधे महीने की, हाफ मंथ सैलरी, हर ईयर के अगेंस्ट हाफ मंथ की सैलरी आपको एज अ ग्रेच्युटी दी जाएगी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। इज इट क्लियर? यानी अगर कोई बंदा 30 साल काम करता है तो एक साल में आधे महीने की सैलरी, दूसरे साल के आधे महीने की सैलरी, तीसरे साल के 4th ईयर के आधे महीने की सैलरी, एक साल में आधा महीना यानी 15 डेज, आप ये बोल सकते हैं।
तो 30 साल में कितने हो गए? 15 महीने। 15 महीने के बराबर की सैलरी उसको फोकट में मिलेगी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। देन हाउ टू charge tax on this amount gratuity, because gratuity is the part of salary and we have already seen it under section 17(1). Definition of salary: basic salary, wages, annuity, pension. Gratuity, it means gratuity is the part of the salary. It means if I'm just going to get the amount of gratuity, it would be charged to tax in the same previous year in which I'll get it at the time of the retirement. 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मैं रिटायर हो रहा हूं, तो मुझे जो भी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा वो उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 1-2 महीने के बराबर का नहीं मिल रहा है, 15 महीने की सैलरी अचानक मिल रही है, और मेरी सैलरी अगर 50,000 रुपए पर मंथ थी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो मुझे 7,50,000 एक साथ मिलने वाला है। अब वो जो 7,50,000 मुझे 30 इयर्स के बाद जो आज मिल रहा है, अगर उस पर टैक्स लगाया जाए, एक तो रिटायरमेंट हो रहा है, रोने वाली बात है, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स लगा रही है। ये कौन सी बात होती है? ये कहां का इंसाफ है कि रिटायरमेंट की एज में आप हमारे ऊपर एक अच्छा खासा 7.5 लाख रुपए का टैक्स लगा दो? अरे भैया, नहीं होने वाला ऐसा। गवर्नमेंट ने माफी दी, किस सेक्शन में माफी दी? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में माफी दी। और गवर्नमेंट ने कहा, और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, एग्जेम्पशन का मतलब होता है, लेक्चर नंबर शुरू के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दिया, एग्जेम्पशंस मींस incomes which do not form part of total income। ना तो इसको प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, इसको टोटल इनकम का हिस्सा मानते ही नहीं है। ये हमने डिटेल में आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, और मैंने कहा था जब जब वर्ड सेक्शन 10 आएगा तब तब आपके दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए कि हम एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉइज को 2 पार्ट में बांटा गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ढंग से सुनेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार समझ लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो ठल्ले ठल्ले। 100% exempt होता है, means if any government employee is going to get the amount of gratuity at the time of the retirement, then the 100% of the amount will be exempt and it won't be part of the total income of the employee. Never be considered as its income. Neither it will be added or nor it will be deducted at all. Is it clear? जी, इसके बारे में बताइए। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में तोड़ा था। हाँ सर, याद है। पहला, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, (1972), not covered under Gratuity Act 1972। Least of following is exempt। इन तीनों में जो सबसे कम होगा ना वो माफ होगा। नंबर 1 actual amount and number 2 maximum limit prescribed by government in this account, rupees 10 lakhs। Actual amount, maximum limit of rupees 10 लाख। जो चेंजेस हैं वो थर्ड में है, जो भी चेंजेस हैं वो थर्ड में है। देखिए, गवर्नमेंट ने अगर आपको, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने, नॉट गवर्नमेंट, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 20 लाख रुपए दे दिए ग्रेच्युटी के नाम से, लेकिन जो सबसे तीनों में कम आ रहा है दैट इज 12 lakhs।
तो माफ कितना हो जाएगा 12 लाख। अब आप अपनी टोटल इनकम में कितना दिखाएंगे, ओनली ₹8 lakhs। Rest 12 lakh is exempt. It is not required at all to show it in the return. You can show it at ₹8 lakhs directly in your return of income, because the rest of the amount which is exempt is not the part of the total income. अच्छा, थर्ड क्या है, हाफ मंथ सैलरी। और हाफ मंथ सैलरी कितना, 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof। सर एक बार और बताइए, इसको थोड़ा ढंग से बताइए। मैं अगर बोलूं हाफ मंथ सैलरी मींस नॉट 15 divided by 30 days। ओके, over here again I am just going to write the word half month salary, but here half month salary means 1/2, as we know। half month salary on the basis of, not on the basis of the last drawn salary, but on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service। और यहां पर पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर मैं यहीं पर रुक जाऊं तो शायद मैं आपको कुछ कंफ्यूजन में छोड़ कर जाऊंगा। क्यों ना आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। मैंने कहा कि मैंने जो काम किया है इन टोटलिटी 10 years, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इज इट क्लियर? ये 10 साल मैंने काम किया। अब मुझे जो ग्रेचुटी मिलेगी वो आज की डेट के सैलरी के हिसाब से मिलेगी, न कि 10 साल पहले सैलरी मेरी थी 5,000, now I'm just getting ₹9,000। It means I'll get the amount of gratuity not in accordance with ₹5,000, but I'll get the amount of gratuity calculated on the basis of last drawn salary, and the last drawn salary was ₹9,000, और इस 9,000 के बेसिस पर हमारे ग्रेचुटी का कैलकुलेशन किया जाएगा। सर ये चीज तो क्लियर हो गई कि 9,000 इज ओके एंड दैट वाज द बेसिस लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब जितने साल मैंने काम किए हैं हर साल के आधे आधे महीने, अगर आप आधा महीना लेते तो आप कहते कि सर 10 साल में 5 महीना, एक साल में आधा महीना, 2 साल में एक महीना, तो 10 साल में 5 महीने, दैट वाज ओके। लेकिन आपका सोच गलत है। क्यों? आपकी सोच घटिया है। क्या है? गलत है। कहने का मतलब ये है, यहां पर जितना भी 15 divided by 26 days, 15 divided by 26 days, 15 divided by 26 days, यानी अगर आपकी सैलरी जितनी भी होगी वो 15 दिन की कैलकुलेट की जाएगी लास्ट ड्रॉन सैलरी। यानी 9,000 की सैलरी अगर एक महीने की सैलरी है तो 15/26 दिनों की सैलरी कितनी होती है आप कैलकुलेट कर लो। That was in excess of ₹4,500, not the exact 4,500, because we have considered denominator less than 30। अच्छा, तो आपको एक फायदा दिया गया, ज्यादा अमाउंट ऑफ सैलरी आ जाएगा। ये है कैलकुलेशन का तरीका। 9,000 के बेसिस पर 15 दिन की सैलरी एक साल की, 9,000 के बेसिस पर 15 दिन की सैलरी एक साल का, यानी वो 15 दिन की सैलरी पूरे साल भर में आपको फोकट में मिलती है। तो अभी अभी जो सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उसका 15 दिन का सैलरी निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 26। आपको पता चल जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 मंथ्स ओवर हियर। दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके,
for each completed year of service, that is okay, I have worked for 10 years completely, then I'll get the amount of gratuity on the basis of 10 years completely served. But if I have served 10 years and 8 months, 11 महीने हो जाएंगे, 11 महीने हो जाएंगे, 11 साल मान लिए जाएंगे, सॉरी, हाफ मंथ, यहां का भी हाफ मंथ, इसको हम पूरा 1 साल मान लेंगे। सर अगर एग्जैक्ट 6 महीना हो, 6 महीना 1 दिन, कितने दिन? 6 महीने 1 दिन, तो भी कितना? सर इसको भी 1 साल ले लेंगे, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? पार्ट देयर ऑफ। तो अगर पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज किया गया है तो इसको भी हम 1 साल कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, अगर सर एग्जैक्ट 6 मंथ हो तो, अगर एग्जैक्ट 6 मंथ हो तो भी हम इसको पूरा 1 साल ही कंसीडर करेंगे, तो भी हम इसको पूरा 1 साल कंसीडर करेंगे। नाउ इट विल बी ट्रीटेड दैट आई हैव सर्व्ड फॉर कंप्लीट 11 years, because part thereof would be the part of the year, and if I have served 6 months or in excess of 6 months, it will be calculated as a complete year. Is it clear? जी सर, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, हटा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात बोलूं, यहां वाली, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया, और जब पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, तो अगर मैंने 10 साल 11 महीने यानी कि पूरा का पूरा 11 महीना काम किया, 11 महीना 28 दिन, 1-2 दिन बचा था 1 साल पूरा हो जाता, लेकिन चूंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया, पूरा का पूरा साल खराब, वो ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, एक चीज थी, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया। दूसरा, now we have to take the base not on the basis of the last drawn salary, as in our earlier last example we have taken rupees 9,000, and at the time of the joining I was getting rupees 5,000, but at the time of leaving off my job I was getting rupees 9,000, and 9,000 was taken as a base for the purpose of calculation of gratuity. But here the basis will not be considered the last drawn salary, but we have to calculate the amount of gratuity on the basis of last 10 months average salary. अगर मैं कहता हूं लास्ट 10 months average salary, तो इसका मतलब I have considered 10 months salary, not at all. आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है 10,000, आपको चले 5 साल ले लेते हैं, 5 महीना ले लेते हैं, 10 महीने, एक महीने की सैलरी मिलती है 10,000, दूसरे महीने की सैलरी मिलती है 10,000, तीसरे महीने की सैलरी मिलती है 10,000, फोर्थ मंथ की, फिफ्थ मंथ की, इन टोटलिटी यू आर गेटिंग फॉर 5 months 50,000. If I will consider the average, your average will be rupees 10,000. Yes sir, the answer is same if there is no change in the amount of salary. But okay, अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपको सैलरी 12,000 हो गई, तो ये हो जाएगा 10,800. It doesn't mean this is the amount of salary of 4 to 5 months, 5 months, not at all. This is the amount of salary of complete 1 month. यहां पर भी हम लोगों ने 1 महीने की सैलरी कंसीडर की थी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, और यहां पर भी हम लोग 1 ही महीने की सैलरी कंसीडर कर रहे हैं, 1 ही महीने की सैलरी, एवरेज सैलरी 10 का होगा तो 10 का एवरेज 1 महीना ही होता है, 10 महीने की एवरेज सैलरी वो 1 महीने की ही सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है, बट यहां पर 10 महीने की सैलरी का एवरेज निकाला जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। यहां पर हमने लास्ट ड्रॉन सैलरी को कंसीडर कर लिया था, दैट 1 month सैलरी वाज कंसीडर्ड एज अ बेसिस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, बट हियर वी हैव टू कंसीडर द 1 month सैलरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 1 month सैलरी, but on the basis of the average of last 10 months averages, last 10 months salaries average. Is it clear? हटा सकते हैं। अच्छा सर, सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब तो आपने हम लोग को बहुत कुछ बताया है। सैलरी का मतलब आपने बोला बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, फलाना डिमाका, लेकिन यहां सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए,
डियरनेस अलाउंसेस, और यहां सैलरी का मतलब है नॉट कवर्ड में बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर ये डीए डीए क्या है, ये डीए डीए, ये इफ क्या है, ये उफ इफ, ओके, ये परसेंटेज परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज परसेंटेज। तो अगर नोट हो गया हो तो मैं इनको समझाने की कोशिश करूं। ग्रेचुइटी में अब तक हम लोगों ने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो चीजें देखते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट में तीन चीजों में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs और हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी हियर मींस basic salary plus DA. DA means dearness allowances. That's it. And in the second part, employees not covered under the gratuity act. If employees are not covered under the gratuity act, then the list of the following is exempt from tax. First, actual amount 10 lakhs, and the third one was half month salary 15 divided by 30 days salary on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service and not part thereof. Okay. अभी मुझे आपको इसका मतलब समझाना है। सर इसमें भी मतलब है? हाँ इसमें भी मतलब है। फिलहाल जिसको हमें समझाना है वो समझाना है बेसिक सैलरी भी नो, कि जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है तो हमें कहा जाता है आपकी सैलरी रहेगी 10,000 पर मंथ। दिस इज आवर बेसिक सैलरी, दिस इज आवर बेसिक सैलरी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गेट द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट will get the amount of perquisites, yes or no? हम लोग को कई सारे perquisites और allowances का benefit दिया जाता है, वो भी तो हमारा सैलरी का हिस्सा होता है, बोनस कमीशन वगैरह सारा चीज, हाँ या ना? तो क्या करें? अब बात आती है जो अलावेंसेस दिया जाता है उनमें एक अलावेंसेस कहलाता है डियरनेस अलावेंसेस। क्या कहलाता है? डियरनेस अलावेंसेस। तो फर्स्ट पार्ट तो ये याद रखें कि डियरनेस अलावेंसेस 100% टैक्सेबल होता है। और जब हम लोग इस पार्ट में, पार्ट 1 में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पार्ट 1 में कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो डीए को उसका हिस्सा मान लिया जाता है। यानी जब जब हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 20,000 और मेरा जो डीए था वो था 30%। तो मेरी टोटल लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू लॉ? According to law, I have to add both of these to find out the last drawn salary. Yes or no? Now I got rupees 26,000 as my last salary, and on the basis of rupees 26,000, I'll calculate the amount of gratuity whatever I'll be entitled to receive from the employer. Okay, that is okay, na? हाँ sir. But what about the part, second part, where the employees were not covered under the gratuity act? जहां पर employees ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो वहां पर क्या करें? बेसिक सैलरी लेंगे? जी सर लेंगे। 20,000 मेरी बेसिक सैलरी है। कहा गया डीए, डीए इज 30% प्लस ए परसेंटेज। तो पहले तो हम इफ का मतलब समझ लें, डीए इफ। जब हम डीए की बात करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। इफ received under the terms of employment, if not received under the terms of employment। अब
अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है इसकी मीनिंग क्या ड्रॉ करें, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग देयर ऑफ। ये हम लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, किस चीज का कैलकुलेशन था सर? सर 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 ये ग्रेजुटी का कैलकुलेशन है, ठीक है। और ग्रेजुटी के कैलकुलेशन में डीए विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी भी क्लियर नहीं है? If at the time of retirement benefits are to be calculated by considering DA, then it will be said that the DA is the form part of the employment। यानी जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपको एम्प्लॉयर कहता है आपको जो डीए मिल रहा है ना, ये आपकी शर्तें हैं एग्रीमेंट की, आपको जो डीए मिल रहा है ना, जब आप रिटायरमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ रूल है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स आपको जब हम देंगे तो उसमें डीए उसका हिस्सा होगा। इट मींस डीए इज द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर मेरा मालिक कहता है डीए के बेसिस पर कैलकुलेशन करोगे, नहीं है डीए ऐसा, केवल बेसिक सैलरी लेंगे और डीए तुम्हारे केवल और केवल काम करने वाली एज पर ही मिलेगा। जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन किया जाएगा उस समय आपके डीए को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा जी। अगर ऐसा बोला जाता है तो मेरा डीए मेरी शर्तों के अंतर्गत नहीं आता, नॉट रिसीव्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? सर ये लास्ट का क्या मतलब है और ये परसेंटेज का क्या मतलब है? अब हम बात करेंगे सबसे पहले परसेंटेज की। किसकी? परसेंटेज की। ये परसेंट का मतलब है परसेंटेज ऑफ कमीशन। कमीशन on the basis of percentage on turnover, यानी sales achieved by him during the relevant previous year। इसका मतलब आप ये समझ लेंगे कि now percentage means the employee is able to get the amount of commission on the basis of percentage on turnover achieved by him, that's it। ऐसा टर्नओवर जो उसने अटेन किया है उसकी अपनी एफर्ट से उस टर्नओवर को, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑन परचेजेस नहीं, सेल्स। टर्नओवर पूरे फर्म का नहीं, सेल पूरे फर्म का नहीं, बल्कि ऐसा सेल जो उसकी अपनी एफर्ट से आया है और परसेंटेज के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, ना कि पर मंथ फिक्स्ड है। मैंने कहा ये ले 5,000 रुपए हर मंथ का कमीशन है, ना 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 ना, ये वाला कमीशन जो हर महीने 5,000 फिक्स है वो सैलरी के उस कैलकुलेशन के पर्पस से काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, मैंने ये कहा ये लो 10% कमीशन, अच्छी बात है, लेकिन परचेज पर है।
नहीं अकाउंट किया जाएगा क्योंकि टर्नओवर पर होना चाहिए। मैंने कहा है ये लो 10% कमीशन टोटल सेल्स ऑफ द फर्म पर काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसका अपना कितना सेल किया गया है अपने एफर्ट से, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, बस एक चीज को छोड़कर, वो है लास्ट। लास्ट वर्ड मीन्स क्या? लास्ट का मतलब आखिरी। जी, अगर मैं एक एग्जांपल लूं और मैं कहूं डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 10th August 2018, indicate last 10 months. Case number 1, date of retirement is 31st August 2018, indicate last 10 months. Solution 1, लास्ट 10 मंथ्स क्या होंगे सर? अगस्त में तो 10 तारीख है, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 17, नवंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हैं आपके लास्ट 10 मंथ्स। अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट 10 अगस्त 18 हो तो ये होंगे हमारे लास्ट 10 मंथ्स। अब अगर मैं बोलूं कि हमारा डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31st August 2018, then what would be the last 10 months of retirement? Your answer would be C. भले 31 तारीख है, लास्ट का मतलब क्या होता है? पिछला। तो अगस्त का पिछला महीना क्या? जुलाई। सो सिंपल। ये नहीं कि सर पूरा महीना हो गया, दिस इज नॉट योर लास्ट मंथ, दिस इज योर करंट मंथ। तो अगस्त वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दैट पर्पसेस। तो लास्ट का भी मतलब समझ में आ गया। अब हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने जा रहे हैं। मैंने आपको ग्रेचुटी स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दी थी कि अगर आपने ग्रेचुटी पर पूरा कंसंट्रेशन दिया और एक बार ग्रेचुटी टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर? मैंने यही बोला था, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। ओके, some important points. ये जो अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, दीज आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर ग्रेचुटी टॉपिक। And these 3 important points are not important only this one topic, but equivalent importance they have in your next topic, लीव इनकैशमेंट। जब आप लोग देखेंगे तो उसमें भी इसका उतना ही रोल होगा। आपको केवल कॉपी पेस्ट करना। मैंने बार बार बोला है, अगर आपने ग्रेचुटी ढंग से समझ लिया कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब समझें पॉइंट नंबर 1। If any employee gets
the amount of gratuity during tenure of service, then it is 100% charge to tax. Means nothing is exempt. Cause this is after retirement benefit. उम्मीद है आपको मेरी ये 4 लाइनें समझ में आएंगी। स्टार्टिंग ही मैंने यहीं से किया था, gratuities and after retirement benefits. If any employee is going to get the amount of gratuity during its tenure of service and not after retirement but before retirement, then it is 100% charge to tax without giving even a single penny of exemption. Okay. Second, if any employee gets retired from more than one employer, in the same previous year, then also the maximum limit of exemption would be restricted to rupees 10 lakhs. अगर कोई एम्प्लॉई एक साल में मान लो 2 जगह काम कर रहा था, आप मना तो नहीं कर सकते, नहीं, अगर एक ही साल में वो 2 जगह काम कर रहा था और दोनों जगह से एक साथ रिटायर होगा, हाँ, क्योंकि दोनों जगह उसकी एज 60 साल एक ही जगह हुई होगी, ठीक है, तो अगर एक साथ दोनों जगह से रिटायरमेंट ले रहा है और दोनों जगहों से उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है, तो ये नहीं कि 10 लाख उस एम्प्लॉयर का भी माफ करने के लायक और 10 लाख इस एम्प्लॉयर का भी 20 लाख का बेनिफिट, अरे ना बाबा ना, आपको टोटल 10 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा इन टोटालिटी इन बोथ ऑफ दीज टू प्लेसेस. इफ यू आर गेटिंग the amount of gratuity after retirement from more than one employment, then also your maximum benefit of rupees 10 lakhs would be restricted to rupees 10 lakhs. It cannot go beyond that. Okay, third point, if any employee is getting retired in previous year and has already availed the benefit of exemption in any earlier year at the time of retirement, haram previous employer. Then yes, the maximum limit of rupees 10 lakhs would get reduced by that amount which employee has already got exempted in any earlier year. मान लेते हैं एक एम्प्लॉई ने 2008
8 9 में एक जगह से रिटायरमेंट लिया और उसको टोटल बेनिफिट 1 लाख का मिला था और ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट था। आज 2018-19 में वो दोबारा दूसरे के यहाँ काम करने गया और वहां से रिटायरमेंट ले रहा है, तो अब जो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी ना, that would not be rupees 10 lakhs, but it would be reduced by rupees 1 lakh, which he has already got the exemption at the time of retirement from their earlier employment. Now the maximum limit of rupees will be restricted to rupees 9 lakhs and it would not be rupees 10 lakhs. It means we can understand easily that this 10 lakhs is for a lifetime of an employee. आप बार बार रिटायरमेंट होंगे तो आपको बार बार 10 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार अगर कोई बेनिफिट मिल चुका है तो अब उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं सैलरी का ये टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपको अच्छी तरह से समझ में आया। ध्यान इधर देंगे, मैं 2 मिनट के अंदर आपको रिकैप कर देता हूं आज का सेशन, क्योंकि अगर आज का सेशन ढंग से हो गया तो मैंने बार बार बोला है कि नेक्स्ट सेशंस में हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं। जितना भी आज हम लोगों ने ये पूरे 45-50 मिनट में देखा है, हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स टू गेट इट रिवाइज्ड कंप्लीटली, हार्डली 2 मिनट्स। ढंग से देखें इधर, अगर कोई बंदा ग्रेचुटी में अगर कोई बंदा रिटायर होता है और उसको ग्रेचुटी मिलती है तो उस एम्प्लॉय को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये देखते हैं कि क्या वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। अगर कवर्ड है तो 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी, 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ का मतलब 6 मंथ और मोर देन 6 मंथ। नीचे सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस डीए, दैट्स इट, चाहे वो सेवा शर्तों में हो चाहे ना हो। दूसरे पार्ट में आते हैं कि नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स ऑफ नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपीस, half month salary 1/2 on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service। पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया था, यानी कि 10 साल 11 महीने हो तो 10 ही साल काउंट किया जाएगा। ओके, सैलरी का मतलब यहाँ पर था बेसिक सैलरी प्लस डीए। इफ का मतलब इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड परसेंटेज का मतलब था परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दैट्स इट। यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे और तीनों के बारे में अभी भी मैंने बताया। फर्स्ट, अगर कोई एम्प्लॉई रिटायरमेंट के पहले ग्रेचुटी को इन कैश करवा लेता है तो वो 100% टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल में 1 से अधिक एम्प्लॉयर के यहाँ से रिटायरमेंट लेता है तो भी कुल मिलाकर उसको 10 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा मैंने बताया, अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी किसी साल रिटायर हो चुका था और वहां से कुछ बेनिफिट अंडर सेक्शन 1010 ले चुका था, तो अब अगर वो रिटायर दोबारा हो रहा है तो उस 1010 के एग्जेम्पशन जो ऑलरेडी वो अवेल कर चुका है इस 10 लाख में से माइनस करके इस साल का बेनिफिट मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और विश्वास माने वो बहुत जल्दी कवर होंगे टॉपिक। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।